اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ عید غدیر یعنی 18 ذی الحج، اس کو عید غدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کیا یہ کسی ایک فرقے کے لیے عید ہے؟ عید کے لغوی معنی لیے جاتے ہیں خوشی کا دن، تو کیا یہ صرف کسی ایک طبقے کی خوشی کا دن ہے، یا جو تو اس سے پھر کائنات کے ولیوں تک اسم محمد اور اسم اللہ ذات وہ علی شیر خدا سے آیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد واپس تشریف لا رہے، اب وہاں پر صحابہ کرام میں نہ کچھ آپسی اختلاف ہو گیا، اور وہ بات بڑھتی بڑھتی رسول خدا کی بارگاہ میں آ گئی۔ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ایک دو دفعہ پہلے بھی لگی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، اب مولا کے میں نہیں جان لے، یہاں پہ ڈنڈی نہیں مارنی، مولا کے میں نہیں دوست نہیں لیے جائیں گے، کیونکہ اگر دوست لیا جائے گا تو ہم نبی پاک کو دوست نہیں کہہ سکتے۔ اللہ معاف کرے کہ نبی ہمارا دوست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جشن عید غدیر کی، کہ جو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ پاک جل شانہ خداوند اکبر کے حکم سے میرے اور آپ کے پاک اور آخری نبی محبوب نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے واپسی پر خطبہ دیا، اور جس میں اللہ کے اذن سے ایک اہم اعلان کیا اللہ کے رسول نے، اور وہ اعلان کیا تھا؟ وہ کائنات کے سب سے بڑے ولی اللہ کی ولایت کا ذکر رسالت مآب نے اپنے مقدس صحابہ میں کیا۔ آئیے آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ عید غدیر یعنی 18 ذی الحج، اس کو عید غدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کیا یہ کسی ایک فرقے کے لیے عید ہے؟ عید کے لغوی معنی لیے جاتے ہیں خوشی کا دن، تو کیا یہ صرف کسی ایک طبقے کی خوشی کا دن ہے، یا جو مومن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے، آل رسول اور آل علی سے محبت کرتا ہے، کیا یہ اس کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے؟ فرقے کو کسی کو بھی چھوڑیں، اپنا بھی کسی کا بھی چھوڑیں، صرف آج ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ جس ہستی کا 18 ذی الحج کو یہ خوشی منائی جاتی ہے، جس کے اعلان کی کیا وہ ہستی تمام مومنین مومنات مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ آئیے حضرت مخبر صادق صادق و امین نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اور آپ نے علی شیر خدا مشکل کشا کو کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تو یاد رکھیں تمام کے تمام صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، جو مخلصین صحابہ ہیں اور جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تابعداری کی، ان کے قدموں کی خاک بھی ہمارے لیے باعث شفا ہے۔ لیکن ان تمام کے تمام صحابہ کرام میں سے ایسی شخصیت ہے کہ جس کو صحابہ میں بھی ممتاز مقام حاصل ہے، جن کو اہل بیت اطہار میں بھی خاص منزل و مقام حاصل ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی احادیث شریفہ یعنی فرمان رسول حضرت مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمائے، کسی بھی اور کے لیے نہیں فرمائے۔ یہ ایک ایسا منفرد حضرت علی کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ ان جیسی فضیلت بعد از پیغمبر آخر الزماں کسی کو بھی اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ اور یہ حدیث سیاح حدیث میں یہ ساری باتیں ترمذی میں ہے اور دیگر حدیث میں ہے کہ میرے نبی فرمایا کرتے تھے اے علی تجھے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بندہ جب فنا فی الشیخ فنا فی الرسول کی ذات میں جائے اور رسول اللہ کی محبت میں فنا ہو اور اتنی خدمت کرے، اتنی تابعداری کرے کہ مرشد کا دل اس مرید پہ، یعنی مرشد اپنے اس مرید کو ولایت عظمیٰ یا غوثیت یا قطبیت
या मुकाम कलंदर अता कर दे। ये तो आज के मनसब है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जहां सारे सहाबा रसूल अल्लाह पर जान कुर्बान करते थे, लेकिन हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत अली शेर खुदा हर वक्त हमतन रसूल अल्लाह के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए हाजिर रहते थे। और ऐसा मुरीद जो मुर्शिद की हर आवाज पे लब्बैक कहे, तो वो अल्लाह का मुर्शिद, अल्लाह का वली हो, अल्लाह का प्यारा हो, वो यकीनन उस पर मेहरबान हो जाता है। तो मैं तो बात कर रहा हूं कायनात के मुर्शिद आजम की, हजरत मोहम्मद अरबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके लिए मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां सबसे अहम है, जिनको रसूल अल्लाह इतने उन पर मेहरबान हुए कि उनको देखना भी इबादत बन गया। यानी देख अली को रहे हैं, इबादत अल्लाह की हो रही है। अल्लाह अकबर। ये तौहीद का ऐसा पैमाना है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए रख दिया कि देखो अली को, इबादत अल्लाह की हो। फिर फरमाया मेरे नबी ने, ऐ लोगों जान लो, अली का जिक्र करना भी इबादत है। कैसा, ये मैं कभी कभी सोचता हूं, अली को देखना इबादत। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा को मालूम था अली इस दुनिया से ज़ाहरी विसाल फरमाएंगे और वो हर बंदे ने जाना है, तो फरमा दिया फिर क़यामत तक के लिए तालिबीन और आशिकीन के लिए क्या बनेगा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, लोगों अली का जिक्र करना इबादत है। यानी जो ज़ियारत अली ना कर सके वो जिक्र अली ही कर लें और इबादत खुदा कर लें। यानी अगर कोई अली अली कर रहा है, किसी पर तनकीद ना किया कर, एतराज ना किया कर, यार ये बंदा अली अली बहुत करता है, करने दे, आप भी करें। अली अली करना तो इबादत है, वो तो हुक्म रसूल मान रहा है। आज कोई मलंग अली अली करे ना, हम उसका मजाक उड़ाते। मैंने बहुत लोगों को देखा, वो कोई माँ बारगाह में या कहीं भी कोई अली अली कर रहा हो तो लोग उनका मजाक उड़ाते। यार ये मजाक, ये तो रसूल खुदा की हदीस का मजाक है, ये तो बिल्कुल तौहीन विलायत और तौहीन रिसालत है। अगर कोई मौलाए कायनात का अली का जिक्र करता है, वो फरमाने रसूल है कि अली का जिक्र करना इबादत है, किया करो। अच्छा, मेरे नबी को यह भी पता था एक वक्त आएगा अली के जिक्र पर पाबंदी लग जाएगी। ये जो बनु उमय्या का बाद में वक्त आया, हजरत अली अलैहिस्सलाम के नाम लेवा जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया जाता था। बल्कि मैंने तारीख में यह भी पढ़ा कि अली नाम रखने वाले को भी कत्ल कर दिया जाता था, जो बंदा अली नाम भी रखता था। और ये आज भी यही मामला है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो पहले चेक करते हैं इसके नाम के साथ अली, हसन, हुसैन या अब्बास तो नहीं लगा, नहीं जाने देते, 100 रोले बना लेते हैं, साइड पर लगा देते हैं। मेरे नबी को पता था एक वक्त आएगा अली का जिक्र करना, नाम लेना, अली की बातें सुनाना, लोग इस पर फतवा लगाएंगे, जुल्म करेंगे। मेरे नबी ने फरमा दिया, लोगों याद रखो, अगर ये भी ना कर सको तो जान लो अली की दिल के अंदर मोहब्बत रखना भी इबादत है। अल्लाह वली। अगर आप, मेरा पैगंबर फरमाते, अगर आप मेरे यार अली की मोहब्बत अपने दिल में रखो, अब मोहब्बत दिल में होती है। यानी जो बंदा अगर जुबान से कुछ नहीं पढ़ रहा मगर उसके दिल में आले अली की मोहब्बत है, अली शेर खुदा की इज्जत है, अली की हुर्मत पर वो जान कुर्बान करता है, अली के नाम पर वो अपना सब कुछ वार देता है, हजरत अली का नाम सुनकर उसके जिस्म के अंदर हरारत पैदा, ताकत पैदा होती है, अली का नाम सुनकर उसकी रूह को ताकत मिलती है, अली का नाम सुनकर उसके अंदर बहादुरी पैदा होती है। अगर किसी बंदे को अली का नाम सुनकर सुकून मिलता है, अली के नाम से नूर मिलता है, अली के नाम से उसको सरूर मिलता है, अली के नाम से उसकी इबादत में लुत्फ आ जाता है, अली के जिक्र करने से उसको ऐसे लगता है उसने अपनी बंदगी का हक अदा कर दिया। अगर किसी बंदे को अली का जिक्र करते हुए सुकून मिलने लग जाए, करार मिलने लग जाए, प्यार मिलने लग जाए, और वो चाहे जुबान से कुछ भी ना पढ़े, चाहे वो जाहिर में कोई इबादत ज्यादा ना करता हो, लेकिन उसके दिल में जनाब अबू तालिब के लख्ते जिगर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी और भाई अली की मोहब्बत है, गोया वो खामोश भी बैठा है, वो बिस्तर पर भी बैठा है, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। अगर कोई बंदा अली से मोहब्बत करे, मोहब्बत तो दिल के अंदर ना, मेरे नबी ने फरमाया था अब दिल पर काबू किसको है।
मेरे नबी ने फरमा दिया था अब दिल पर तो कोई जोर नहीं कर सकता। तो मेरे नबी ने फरमाया अपने दिलों के अंदर अली की मोहब्बत संभाल लो। और मैं बहारुल अनवार एक किताब है उसके अंदर ये हदीस नकल है, मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया। और एक और किताब में भी ये हदीस है, तारीख में मैंने ये हदीस भी पढ़ी है, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पर इकट्ठी हो जाए, रसूल आजम ने फरमाया अगर सारी कायनात और कुछ ना करे, सिर्फ मेरे अली की मोहब्बत में इकट्ठी हो जाए, यानी अली से मिलकर मोहब्बत करनी है, अली के नारे लगाने हैं, अली की नियाज देनी है, अली का जिक्र करना है, अली की रिफत और बुलंदी को बयान करें, अली से इश्क करें, अली से प्यार करें। अगर सारी कायनात, रसूल आज़म ने फरमाया, अली से मोहब्बत करने लग जाए, अल्लाह जहन्नम को बुझा देगा, यानी दोज़ख खत्म हो जाएगी, आग ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जिक्र अली शेर खुदा का अगर कोई कर ले। मेरे भाइयों, आओ उस वाकया की तरफ कि जिसको ईद गदीर कहा जाए। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी ईद नहीं कहना चाहिए, एक ईद उल फितर होती है, एक ईद उल ज़हा होती है, तो लिहाजा आप ये ईदें ना बनाएं। ये इस्लाम में, शरीयत में इसका कोई जवाज नहीं है, ये कम इल्मी का बात है। हम लोग पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हैं, या दीगर अरब के अलावा किसी मुमालिक में हैं, उधर का ये कल्चर है। ये अरबी अगर किसी ने जुबान पढ़ी हो या अरब में रहता हो, वो अपनी खुशी के दिन को ईद का दिन कहते हैं। हमारे पंजाब में भी होता है, यार आज तेरे साथ मेरी मुलाकात हो गई, मेरी ईद हो गई, तो उसके लिए वो ईद होती है। ये कहना जी ईद उल फितर और ईद उल ज़हा के अलावा कोई ईद नहीं, तो ये बिल्कुल उन लोगों की कम इल्मी की वजह है। ईद खुशी को कहा जाता है। मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जुमातु ईदुल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। पूछा गया या रसूल अल्लाह जुमा ईद का दिन है? फरमाया हाँ, जुमे को गुस्ल किया करो, सफेद लिबास पहना करो, मिसवाक किया करो, खुशबू लगाया करो, अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा किया करो जिसे जुमा कहा जाता है, खुशी मनाया करो, खैरात बांटा करो, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक किया करो, जो नाराज हैं उनसे सुलह किया करो, हमसायों की खैर किया करो, घर वालों को, माँ बाप को इज्जत एहराम से जुमे के दिन एहतराम से बुलाया करो, और उनसे जो नाराज हैं सुलह किया करो। या रसूल अल्लाह, इतनी खासूसियत, जुमे को आपने खुशी का दिन, ईद का दिन बना दिया। मेरे और आपके महबूब नबी ने फरमाया हाँ हाँ, अल्लाह ने मेरे बाप आदम को जुमे के दिन तख्लीक किया था, इसलिए इस जुमे को ईद का दिन बना दिया गया है, खुशी का दिन बना दिया गया है। आदम की खलकत को खुशी का दिन, और यह कुरान में भी आया, सूरह आल इमरान में भी है, गालिबन मरियम में भी होगा, कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ईद का दिन बना दे इस दिन को। तो जिस दिन वो हजरत ईसा, उस दिन को सलामती का दिन भी फरमाते हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा, अल्लाह उस दिन को सलामती वाला, खुशी वाला, ईद वाला दिन बना दे। और एक जगह यह भी है जिस दिन खमान नाजल हुआ, आसमान से खाना नाजल हुआ, हजरत ईसा ने फरमाया आज अल्लाह ने मुझ पर और मेरे हवारियों पर खाना नाजल फरमाया जन्नत का, इस दिन को भी जन्नत ईद का दिन बना दे। यह खुशी का, यह बाइबल में भी मौजूद है, कुरान में भी है, बाइबल में। अगर हम इसकी तफसीर में जाते, कम इल्मी की वजह से फतवे ना लगाया करें। ईद खुशी का दिन कहा जाता है। आइए अब उस खुशी के दिन की तरफ जाते हैं। फिर उससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ये भी लोग एतराज कर रहे थे, उसी दिन हजरत उस्मान की शहादत है और उसी दिन आप 18 जिलहज ईद गदीर मना रहे हैं। मेरे भाइयों याद रखें, हजरत उस्मान की शहादत ईद गदीर के बहुत साल बाद हुई है। गदीर का वाकया बड़ा पहले हो चुका है। ये गलत बात है कहना जी वो उसकी खुशी में करते हैं हजरत उस्मान की, ऐसी बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। वो वाकया पहले है गदीर का, और वो अहम वाकया है। उस वाकया का ताल्लुक रसूल खुदा से है। वो वाकया इस वाकया से ज्यादा अफजल वाला है कि जिसमें रसूल खुदा का हम ऐलान कर रहे हैं 1.25 लाख के मजमे के अंदर। अब मेरे नबी का ये वाकया सुनिएगा और मोमिनीन झूम जाइएगा, नारा हैदरी लगाइएगा, अली अली कीजिएगा। क्यों? इस वजह से
मैं तो इस वजह से अली का जिक्र ज्यादा करता हूं, सारी दुनिया करती है, हम इसलिए भी करते हैं तब क्योंकि हम औलिया अल्लाह के प्लेटफार्म पर हैं, उनका मशरब लेके चला रहे हैं, उनका मसलक, उनका जो तरीका है वली औलिया सूफिया का। तो तमाम के तमाम कायनात में जितने भी आरफीन हैं, सालिकीन हैं, आशिकीन हैं या वली अल्लाह हैं, गौस हैं, कुतब अबदाल हैं, वली हैं, जितने भी मरातब हैं कायनात के अंदर, इन तमाम के तमाम औलिया अल्लाह का जो मुर्शद है, जो पीर है, जो शेख है, जो मालिक है, जो इमाम है, वो हजरत अली इब्न अबू तालिब है। तो हम क्यों ना अपने जद का जिक्र करें, हम क्यों ना वलियों के इमाम का जिक्र करें। अरे हम वलियों की निस्बत को लेकर चल रहे हैं, तो उस वली का जिक्र क्यों ना करें कि जिसके घराने से पंजतन पाक के बंदे को मोहर लगती है। हजूर सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, या अली या सुल्तान बाहू, आप अली को कितना मानते हैं? फरमाया, अली को इसलिए सबसे अफजल मानता हूं कायनात में पैगंबर के बाद, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसमें अल्लाह ज़ात हासिल किया था, वो इसमें अल्लाह ज़ात की अमानत मौला अली के सीना में मुंतकिल फरमा दी है। तो उससे फिर कायनात के वलियों तक इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात, वो अली शेर खुदा से आया है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के बाद वापस तशरीफ ला रहे। अब वहां पर सहाबा इकराम में ना कुछ आपसी इख्तलाफ हो गया और वो बात बढ़ती बढ़ती रसूल खुदा की बारगाह में आ गई। लोगों ने हजरत अली की शिकायत लगाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये एक दो दफा पहले भी लगी है। मेरे नबी ने फरमाया था तब भी, आप चाहते क्या हो अली से? फिर फरमाया, आप अली से चाहते क्या हो? आप अली से चाहते क्या हो? ये पहले भी मेरे नबी ने। अच्छा, उस वक्त भी वो कुछ लोगों ने हजरत अली के बारे में कुछ बात रसूल खुदा से फरमाई, कायनात के आखिरी नबी से फरमाई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बात सुन ली। सुन के बाद फरमाया, कितने सहाबा हैं? या रसूल अल्लाह, 1.25 लाख का या 2 लाख का मजमा है, सारे के सारे सहाबा मौजूद हैं। फरमाया, इलाका कौन सा है? या रसूल अल्लाह, गदीर। गदीर कहते हैं जिस तालाब के पास पानी जमा हो जाए उसको जगह को गदीर कहा जाता है। ये मक्का शरीफ के यानी उधर से रस्ते में है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो एक मैदान था, पथरीला मैदान अरब का। आज भी आप यूट्यूब नेट पर देखें तो वो वीरान इलाका है। तो उस इलाके में मेरे नबी अलैहिस्सलाम, जहां पर कोई दरख्त नहीं था, कोई छां नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऊंटों पर सब सवार थे, और मेरे नबी ने वहां पर पड़ाव किया। फरमाया, यहां पर पड़ाव करो, आराम करो। सब अपनी सवारियों से उतरे। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए मिंबर को तैयार करो, मैंने उस पर कुछ खुतबा देना है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, यहां पर मिंबर कहां से आएगा? कोई चीज यहां पर मौजूद नहीं है, मिंबर कहां से लेकर आएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, अपने अपने ऊंट से बिस्तर को खोलो, ऊंट के ऊपर जो गद्दियां लगाई हुई हैं इसको खोलो। अब जितने साहबा हैं अपने अपने ऊंट की गद्दियां लेकर आओ और उन गद्दियों का मेरे लिए मिंबर तैयार करो। अल्लाह, इतना अहम ऐलान था कि मिंबर बनवाया और साहबा को फरमाया, अपने ऊंटों की गद्दियां लेकर आओ और मिंबर को लाजमी बनाओ। अब रसूल खुदा मिंबर पर सवार हुए। जब मिंबर बन गया, सहाबा इकराम के दिलों में यह तजस्सुस, क्या बात होने लगी है कि रसूल खुदा ने आज दीन तो मुकम्मल हो गया, तो आज क्या ऐलान रह गया जो अभी करने वाला है रिसालत का। तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, और मिंबर पर तशरीफ फरमा होने के बाद मैं तर्जमा बयान करूंगा और उसका माफूम भी बयान करूंगा ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? जी या रसूल अल्लाह, क्या मैं तुमको तुम्हारी जानों से ज्यादा अजीज हूं? जी या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने सबसे पहले इकरार करवाया, यानी वो मेरा हर हुक्म तस्लीम करेंगे। सब ने कहा, जी या रसूल अल्लाह। या हबीब अल्लाह, आप बेशक सादिक़ अमीन हैं, हम आप पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। साहबा ने फरमाया तमाम। अब देखें, एक मिंबर के ऊपर 1.25 लाख या 2 लाख साहबा से रिसालत माब गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस दिन ये मोजज़ा भी हुआ कि जो जैसी आवाज पहले सहाबी को आ रही थी नबी की, वैसी ही आवाज आखिरी सहाबी तक भी नबी की जा रही थी। ये मोजज़ा रिसालत उस वक्त हुआ। फरमाया, तमाम तक मेरी आवाज आ रही है। सब ने हाथ को बुलंद किया, जी या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगो सुन लो,
पहले अल्लाह की तरफ इशारा करके फरमाया, ए अल्लाह, मैं अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी अली से मोहब्बत कर, और जो अली से मोहब्बत करे अल्लाह तू उनसे मोहब्बत कर। अब सोच ले रसूल अल्लाह क्या दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह मैं अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी अली से मोहब्बत रख, और जो अली से मोहब्बत रखे अल्लाह तू उससे मोहब्बत रख, और ए अल्लाह जो अली से दुश्मनी ले तू उससे दुश्मनी कर, और जो तुझसे दुश्मनी करे उसको जहन्नुम में डाल दे। यानी अली के दुश्मन को अपनी दुश्मनी जानकर उसको जहन्नुम में डाल दे। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ए अली मिंबर पर तशरीफ ले आओ। अब उस मजमे से हजरत अली अलैहिस्सलाम प्यारे रसूल खुदा के पास मिंबर पर आए। मेरे नबी ने ऐसे करके अली के हाथ के अंदर अपना हाथ लिया और ऐसे बुलंद फरमाया, अली का हाथ में लेकर ऐसे बुलंद फरमाया, और बुलंद फरमा के फरमाया, ए मजमे वाले लोगों, ए शरक गरब वाले लोगों, ए शमाल जनूब वाले लोगों, ए मेरे सहाबा इकराम सुन लो, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अली मौला। ए लोगों जान लो, अब जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। अल्लाह वलियों के लिए तो ये मुबारक दिन है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूं, अब मौला के मैंने जान ले, यहां पे डंडी नहीं मारनी, मौला के मैंने दोस्त नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि अगर दोस्त लिया जाएगा तो हम नबी पाक को दोस्त नहीं कह सकते। अल्लाह माफ करे कि नबी हमारा दोस्त है, नहीं, वो हमारे आका हैं, हमारे सरदार हैं, नबी हमारे मुर्शद हैं, नबी हमारे रहनुमा हैं। मेरे नबी फरमाए, लोगों सुन लो, अब जिसका मैं मुर्शिद हूं, जिसका मैं सरदार हूं, जिसका मैं आका हूं, जिसका मैं मौला हूं, अब उसके ये अली भी मौला है। अब ये विलायत अली का ऐलान होना था। सहाबा इकराम ने मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे हुए, या अली, हाथ पकड़ा, आपको मुबारक हो। अब मुझे आप बताएं, मुबारक किसकी दी जाती है? यकीनन जब बंदा ईद मिलता कहता मुबारक हो, खुशी का कोई भी दिन हो बंदा मुबारक कहता है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुबारक कहा, हजरत अली ने खैर मुबारक कहा, फिर तमाम सहाबा ने मुबारकबाद दी, मेरे नबी को दी, मौला अली को दी। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो अकेला ऐलान नहीं था, हजरत सुल्तानुल फुकरा फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद ग्रामी सुल्तानुल फुकरा फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, वो ऐलान ही नहीं था, बल्कि वो इसमें अल्लाह जात का वारिस अली को कर दिया, अपनी अमानत बातनिया अली को अता कर दिया, अपने खिलाफत बातनिया अली को दे दी। क़यामत तक के लिए जो पीरी मुरीदी का मुकाम, नबूवत खत्म हो गई, विलायत का सिलसिला चल गया, वो अली से चला। मौला अली को मुकाम मुर्शद अता किया, पगड़ी बांधी रसूल अल्लाह ने, पग बांधी रसूल अल्लाह ने, और जिसको रसूल अल्लाह पगड़ी बांध दे उसको अपना जानशीन बातनी मुकर्रर कर देते हैं कि ये मेरे बातन का जानशीन है। अली, रसूल खुदा फरमाया, अली मेरे बातन का, अली मेरे इल्म का जानशीन है, अली मेरे बातन का खलीफा है, अली इल्म नबूवत का बांटने वाला है। मेरे नबी ने अली को पगड़ी बांधी, मुबारकबाद हर तरफ शुरू हो गई। अब मुबारकें दी जा रही हैं, सहाबा मुबारक दे रहे हैं। तो आज हम अगर किसी को मुबारक कह दो, ना जी ना, ये फना फिरका मुबारकें देता, आप क्यों कर रहे हो? और यार खुदा से डरना चाहिए हमें, सहाबा मुबारकें दें, मेरा नबी खुश हो, मेरा नबी उनको दुआएं दे रहा, जो अली को मुबारकें दे रहे, मेरा नबी दुआएं कर रहा है, अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे इनका भला करना, अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर, अल्लाह जो अली से प्यार करे तो उनसे प्यार कर, मेरा नबी साथ साथ उनको दुआएं दे। और मेरे भाइयों, ये किसी फिरके का दिन नहीं है, ईद गदीर हर मोमन, हर ईमान वाले का दिन है। अरे इस दिन तो वलियों के सरदार को विलायत मिल गई, अरे कायनात को अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जैसा बादशाह विलायत मिल गया। अली शेर खुदा अलैहि सलाम को क़यामत तक के लिए इल्म मारिफत का वारिस बना दिया रसूल खुदा ने। ये ईद गदीर है, ये वो अहम ऐलान था जो मेरे नबी ने स्पेशल मिंबर पर किया और 1.25 लाख के मजमे में किया।
اور کر کے فرمایا اب جان لو قیامت تک کے لیے جو مجھے اپنا مرشد کہے گا نا، سردار کہے گا، مجھے اپنا آقا کہے گا، تو علی بھی اس کے آقا ہیں۔ اے صحابہ، علی تمہارے بھی آقا ہیں، علی تمہارے بھی مولا ہیں۔ یہ نا یہ فرق ختم کر دیا کرو، کہتے ہیں جی یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ صحابی بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ علی شیر خدا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا، صحابہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یعنی آج کے بعد علی تمہارے سردار ہیں، علی تمہارے آقا ہیں، علی تمہارے مولا ہیں، علی تمہارے والی ہیں، علی تمہارے ولی ہیں۔ تو آج سے علی کی بات کو ماننا ہے اور علی سے فیض حاصل کرنا ہے جو اولیاء اللہ نے کیا، اور قیامت تک کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عید غدیر کا بڑا ہی مبارک دن ہے۔ آج کے دن رسول خدا نے خدا کا بڑا اہم اعلان کیا ہے، اللہ کا حکم سے اعلان کیا ہے، نبی نے خوش ہو کر اعلان کیا ہے، اور رسول اللہ نے علی کو ولایت عطا فرمائی ہے، یعنی نبوت مکمل ہو گئی، ولایت اب قیامت تک چلے گی۔ یعنی مولا علی سے مولا حسن پاک، حسن سے حسن مصنع، اور پھر ان سے غوث اعظم اور دیگر اولیاء، پھر ادھر سے 12 امام، اور 12 اماموں سے بھی پھر یہ معروف کرخی، جنید بغدادی، سر سختی، اور یہ میرے مرشد سخی سلطان باہو، داتا علی حجویری، بابا فرید، ایسے اولیاء اللہ تک قیامت تک کے لیے ولایت بانٹی جائے گی۔ آج بھی غدیر کے دن خوشی منائیے گا، 18 ذی الحج کو حضرت علی کے نام کی نیاز بانٹیے گا، ان کی منقبتیں پڑھیں، ان کی شانیں بیان کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ بھی علی شیر خدا کو مبارک دیں گے، میرا نبی مدینے میں ہمیں دعائیں دے گا کہ سروری قادری مریدو آپ کو مبارک ہو، آپ نے میرے علی سے خوش ہوئے ہو، ان کی ولایت سے خوش ہوئے، یقیناً رسالت مآب ہمارے لیے دعائے خیر اپنی خاص توجہ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک کر کے علی کی محبت کا گنجینہ بنا دے، خزینہ بنا دے، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اہل بیت طہار کی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔